लेट्स बाइट बयानबाजी। बयानबाजी, आइए जानते हैं वे बयान जो देश और दुनिया पर डालने वाले हैं अपना असर। पश्चिम बंगाल में एक निजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुए रेप के मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। हालांकि सीएम ने छात्राओं से भी रात में बेवजह बाहर न घूमने की अपील की। ममता ने दोषियों को सख्त सजा देने का आश्वासन दिया। Especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. There is a forest area. पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर पलटवार करते हुए तंज किया कि सीएम ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं का रात में घर से निकलना ठीक नहीं और हर बहन बेटी अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर ले। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। तो करेगी, चीफ मिनिस्टर ने बता दिया, पुलिस मिनिस्टर बता दिया, गर्ल चाइल्ड को रात को निकलना ठीक नहीं है और हर बेटी बहन अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद कर लीजिए। चीफ मिनिस्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया है, शी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ द स्टेट, सेम ममता बनर्जी, सेम। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित न किए जाने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि किसी का हक जाया नहीं हो सकता, चाहे मर्द हो या औरत। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शॉर्ट नोटिस पर आयोजित की गई थी और पत्रकारों की सूची टेक्निकल कारणों से सीमित रखी गई थी। मुत्ताकी ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यवस्थागत मामला था, इसके पीछे कोई और मंशा नहीं थी। تیره ورځ چې دلته کوم خبري کانفرنس وو زموږ تخنیکي ټیمونو محدودو خبریالانو سره رابطه کړې وه او هغوی یې راغوښتي وو. نو هماغه کسانو چې کله شرکت وکړو د نورو دپاره یې تصمیم نه و نیولی، د بعضې داسې ښکاره شوه لکه ځینې خبرنګاران چې مناسبې وي، په حقیقت کې یو مشخص لیست لیږل شوی و، د هغه له مخې څو کسان راغلي وو، نوره په دې کې کومه خاص خبره او ستونزه نه وه. With regards to the press conference, it was on short notice and short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems in that regard. زموږ ملګرو داسې فکر کړی و چې باید یوازې هغه کسان راسي چې هغوی دعوت شوي دي، نو ځکه هغه محدودیت راغلی، نوره کومه خاصه پرېکړه نه وه شوې. Our colleagues had decided to send invitation to a specific list of journalists and it was no other intentions other than that. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गाजा में चल रही शांति प्रक्रिया और बंधकों की रिहाई सहित पूरे मामले पर सेंट्रल कमांड से सैनिकों की निगरानी रखे जाने की बात कही है। जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि गाजा इजराइल में सैनिकों द्वारा जमीनी तैनाती को लेकर अमेरिका का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया। George, so that story is actually misreported. We already have troops at Central Command. We've had them for decades in this country. They are going to monitor the terms of the ceasefire. And that's everything from ensuring that the Israeli troops are at the agreed upon line, ensuring that Hamas is not attacking innocent Israelis, doing everything that they can to ensure the peace that we've created actually sustains and endures. But the idea that we're going to have troops on the ground in Gaza, in Israel, that is not our intention. That is not our plan. There was a bit of a misreporting there, but we are going to monitor this piece to ensure that it endures. The other piece of good news that's been underreported, I think, George, is that Indonesia and a number of other majority Muslim states, they've actually offered to send ground troops to Gaza to ensure the necessary peacekeeping takes place. That's not something the United States is going to be expected to do. That's something the Muslim world is going to step up and do. And that, again, is because of the Trump administration's diplomacy. अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद
अफगान सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान रोकने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान सुरक्षित है, कोई सुरक्षा संकट नहीं है। मुत्ताकी ने दावा किया कि सोवियत, अमेरिका और नाटो जैसे विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होकर अब अफगानिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है। के लिए कोशिश कर रहा है और अंदर 4 सालों से कोई बुरा वाक़या नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में बहुत सारे अक़वाम आबाद हैं। अभी सब के सब शमाल से लेकर जुनूब तक शर्क से लेकर गर्ब तक सारे लोग मुत्तहिद हैं और इमारत का साथ खड़ा है। तो इमारत का जो पॉलिसी है वो ये है कि पहले तो मुज़ाकरा और मुफाहमा से सब के सब मुश्किलात हल करना चाहता है। हम ज़ीरो टेंशन के तरफदार हैं और अगर वो नहीं चाहता है तो फिर अफगानिस्तान के पास और रास्ते भी है। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत के मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हरियाणा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के जिस एडीजीपी ने आत्महत्या की, उन पर अत्याचार हो रहा था। सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो एडीजीपी हरियाणा ने सुसाइड किया है, वो एक मनुवादी सोच से उत्पीड़ित था, उस पे अत्याचार होते थे और उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है जिन लोगों के नाम सुसाइड नोट में हैं उन पे कार्रवाई करके उनको अंदर करें और उनको डीजीपी को वहाँ से हटाएं। ये हम परिवार की मांग है। इसमें क्या गलत मांग रहे हैं? जिसकी वजह से उनका एक एडीजीपी रैंक है, जिसकी घरवाली आईएएस है, की मौत हुई है, उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ये सारी कांग्रेस की मांग है और हम कल को पूरे स्टेट में कैंडल मार्च करेंगे। अगर ये मसला हल नहीं करती सरकार, परिवार सेटिस्फाई नहीं होता, तो एजिटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। पंचायत आज हो रही है चंडीगढ़ बंद को लेकर, जो महापंचायत का फैसला होगा, जैसा होगा, पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ेगी। बिहार में बीजेपी नेता राजन तिवारी ने पार्टी को चेतावनी दी है कि मैं इंतजार कर रहा हूं और 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो उसे महंगा पड़ेगा। हालांकि उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से मना किया। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे, पार्टी से लड़ेंगे। बस 1-2 दिन का इंतजार करिए, 1-2 दिन का इंतजार करिए, पार्टी से लड़ेंगे। देखिए बीजेपी, देखिए मैंने बीजेपी का कार्य किया है, 19 से पार्टी ज्वाइन करके बीजेपी में रहा हूँ निष्ठा ईमानदारी के साथ। बीजेपी नहीं देगी तो विचार करेंगे, और बीजेपी को अगर मुझे चुनाव नहीं लड़ाएगी तो बीजेपी को महंगा पड़ेगा। सीट शेयरिंग से सब लोग खुश है यार, सीट शेयरिंग दोनों घटक दल खुश है और दल ठीक है, ठीक है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत सही दिशा में है। उन्होंने कहा कि टिकटों को लेकर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। आप लोग चिंता नहीं करें, उनका इंतजार कर रहे थे हम लोग। उनके इंतजार के बाद हम उस हिसाब से हम काम करेंगे और हम दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहाँ पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। एनडीए का आ गया है तो हम उससे हम अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा अपना काम है, हम अपना काम से जो है जा रहे हैं, पार्टी के काम से जा रहे हैं। वहाँ मिलजुल करके जो फैसला होगा बहुत जल्दी होगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं, इलाज वही होगा बेहतर। देखिए कई चैनल में कई तरह के बात, अभी एक चैनल में यही सवाल आ रहा था कि रूठे हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ के हालात पर अपनी गंभीरता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में 7-8 जिलों में लोगों के बीच गया, उनकी समस्याओं को सुना, क्योंकि जनता का काम करना हमारा दायित्व है। के साथ ही मेरी जिंदगी का ये सारा समय निकला। अब वहाँ क्या है कि वो वीआईपी कल्चर हो गया, तो सामान्य व्यक्ति से मिलने का कम से कम काम, और मेरा अधिकांश समय राजस्थान में निकला है, उस ट्राइबल एरिया में निकला है। तो मुझे कई बार लगता है कि मैं उतना उनके साथ
मिल नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे मिलना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा मुझे मन में रहता है। और मुझे जो आनंद यहाँ उन सब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच जो मेरा समय निकलता था वो मुझे बहुत आनंद देता था, क्योंकि मैं स्वयं भी एक बहुत सामान्य व्यक्ति रहा हूँ और मैं ऐसे ही सब लोगों के साथ अपना समय निकाला है, तो उसके कारण से मुझे जरूर अनुभव होता है कि वो एक अलग कल्चर हो गया, उसका अलग डेकोरम हो गया, उसके लिए आसानी से व्यक्ति मिल नहीं सकता। फिर मेरे साथ जो वहाँ सिक्योरिटी के जो है जेड सिक्योरिटी मिली हुई, वो भी एक तरह से उस एरिया को देख करके एक तरह से उसके कारण से थोड़ा सा, लेकिन मैं वहाँ भी पंजाब में भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोई जिला नहीं छोड़ा, कोई ऐसा नहीं है, मैंने पब्लिक के साथ भी अपना कांटेक्ट बनाए रखा। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने इनके संघर्ष को भारत के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने की बात कही। शिवराज सिंह ने कहा कि आपातकाल के दिनों में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया। आज हमारे उन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया यहाँ, जिन्होंने आपातकाल के काले दिनों में लोकतंत्र को बचाने के लिए निरंतर संघर्ष किया। जून 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। इंदिरा जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी, संविधान को कुचल दिया था। न अपील थे, न वकील थे, न दलील थी, और देश भर में हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी 8,500 से ज्यादा लोग जेलों में थे। इन लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष ने ही फिर से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। अमानुषिक अत्याचार सहे, कई के परिवार तबाह हो गए, काम धंधे चौपट हो गए। उनका संघर्ष भारत के लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया। बाबूलाल जी ताम्रकार। कर्नाटक में बाढ़ के हालात को लेकर बीजेपी नेता बसवराज एस बोम्मई ने कर्नाटक सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ का कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया और न ही आकलन किया गया। उन्होंने कहा कि किसान मुआवजा मांग रहे हैं जो सरकार देने को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी बताया। कर्नाटक there are the huge rainfalls all throughout the Karnataka. Floods are there. There is no proper survey has been done, no proper assessment has been done, and farmers are demanding the crop compensation, which this government is not willing to give. Last time also they didn't give, only the central assistance was given, and whatever earlier advance they have given, they had taken it out, 2,000 rupees from the central government advances. Therefore, this government is anti-farmer. Secondly, in Bangalore, there is huge floods and water is on the roads continuously. The international IT city, Bangalore, is suffering like anything under the regime of Congress. Still, CM and Deputy CM are busy making meetings about Greater Bangalore. It is not the question of making Greater Bangalore Authority, it is making Bangalore great. That they have forgotten. And brand Bangalore has got a very bad hit under this regime. Therefore, they are meeting in the core committee and discussing all these issues, and BJP will take it up in the midst of the people and will make Jana Andolana against this government. Okay, sir. ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news